तो कल आप लोगों ने कुछ पढ़ाई किया था इकोलॉजी के ऊपर? नो? We gone through some ecological concept. Yes, sir. क्योंकि आगे आज का जो चैप्टर है काफी टफ है, पहले से बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा मेहनत लगेगा बट इजी टू अंडरस्टैंड मैंने बनाया है लेक्चर एज यूजुअल। सो नोट्स लेके बैठिएगा, यू मस्ट बी रेडी विद योर नोट्स, है ना? बिकॉज नोट्स तो चाहिए। चलो नोट्स नहीं भी रहेगा तो स्लाइड आई विल अपलोड, स्लाइड एंड रिकॉर्डिंग। So now second part we are going to discuss the biodiversity, right? So what is biodiversity? So there are two parts: defining the biodiversity and how to measure the biodiversity in a population, right? So this is very important. So there are a few terms I would like to discuss with you. That is a species abundance and diversity index, right? And just a minute. What is the community? Or define the community: an association of different species in a particular area is defined as community. ठीक है? And what is the community structure? Community structure. What is the relative abundance among the community? So if there are different species, this is a community, है ना? Similar species is not a community. ध्यान देना, similar species is not a community, right? Rather than, what is the community? Community means there is a different species. Okay. What is the community structure? What is the relative abundance of a species in a community? That is called the community. What is the guild? A group of organisms that all make a living. है ना? A group of organisms that all makes a living in the same ecological manner. All right. For example, fruit-eating birds, seed-eating mammals. So all these are kind of guild, है ना? So ecologically they are having the same behavior. For example, fruit-eating birds. So they are all eating the fruits. Seed-eating mammals, all they are eating the seeds. Filter feeders in a stream. So some birds are feeding over the stream. You know, they are using this filter mechanism. So this is not compulsory that in a guild they may be closely related species. They may be a different species. Clear? They may be a different species. Getting my points? And what is the life form? A plant equivalent of a guild: tree, shrub, grasses, and mosses. What is the life form? Plant equivalent of a guild: tree, shrub, grasses, and mosses. So second terminology you can see, and you can see the diversity. So there are two terms which are defining the biodiversity. Biodiversity is consist of species richness and species evenness, right? So what is the difference between two? Species evenness and species richness. As the name suggests, species richness means number of species in a community. How many species are there in a community? We will solve the problem. Numerical problems are coming in the CSI exam. So tomorrow I will say what the I will say that numerical problem. Species evenness, relative abundance of each species, right? Relative abundance of each species, that is evenness. And the number of species in community, that is the part of
species richness. Okay. So biological diversity, there are two main factors that must be taken into account for calculating biological diversity. We'll calculate the biological diversity with example. Again, species richness, species equivalence, है ना? फटाफट देख लेते हैं. Species richness, this is a measure of number of different kind of organism. ध्यान से देखना क्योंकि अभी इसी पे न्यूमेरिकल है. And all you are going to do mistakes if you are not reading the terminology or not careful in these terms. So it's a measure of number of different kind of organism. So you have to count the species. How many species are there in a community? And each species count one. Each species contribute one count to the total number of species. So population is 1 or 1 million. This is the same. We'll see this. So now we are going to solve this problem. Now tell me, how many species are there in this table? Community 1 and community 2. Hello, am I audible to all of you? Yes, sir. Good evening. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Hello. Hello. Yes, sir. Akshika, are you there? Aprin? Yes, sir. Sir, you are audible. Yes, sir. न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं आज. Yes, sir. ओहो. ओके ओके. मैंने ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर दिया था. ओके. तब मैं कह रहा हूँ आवाज को नहीं आ रही. चलो. So what I'm saying, this is a two community, right? Community 1 and community 2. Now you have to tell what is the species richness in community 1. बताओ. Any idea? आवाज नहीं आ रही है. आवाज आ तो रही है. हेलो. ठीक है. चलो, what is the species richness? Can you tell me? तो community second में. हाँ, community second में कितना है? Species richness की बात मैं कर रहा हूँ. What is the species richness in community 1 and community 2? This is the question. Getting the point? I'm asking species richness. Question काफी आता से है. तो community second जो है species richness को शो कर रहा है. सर डेजी 20, डैंडेलियन 49, बैंडकप 931 है. क्या फ्रेंड? तो कम्युनिटी फर्स्ट में ऑलमोस्ट सारे एक जैसे हैं. 300, 335, 365 तो सारे एक जैसे हैं. बट कम्युनिटी सेकेंड में जो है डेजी 20 है, डैंडेलियन 49 है. स्पीशीज रिचनेस कम्युनिटी सेकेंड में. कम्युनिटी सेकेंड में है. ठीक है, चलो अब आंसर देख लेते हैं. तो ये देखो, कम्युनिटी 1 में स्पीशीज रिचनेस उतना ही है जितना कम्युनिटी 2 में है, दैट इज 3. सर क्योंकि अभी आपने बताया था कि स्पीशीज रिचनेस में मतलब जो भी एक तरह की स्पीशीज होगी उसमें चाहे कितने ही नंबर हो पर वो एज अ वन काउंट होगी.
हाँ 1 काउंट होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही, यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। तो सर इस अकॉर्डिंग दोनों में ही भले ही रेशियो ऊपर नीचे है, पर है तो वो अलग अलग 3। यस राइट। ये सर अलग अलग स्पीसीज है, कम्युनिटी फर्स्ट में भी अलग है 3 और कम्युनिटी सेकंड में भी अलग है 3। वेरी गुड, ठीक है। यस सर। आपने जो बताया था वो क्या था? तो ये देखो सर मुझे लग फार्मूला रहा है है, वो स्पीसीज इवनेस वाला होगा सर। नहीं आपने सर, बायोडाइवर्सिटी, वो बायोडाइवर्सिटी बताया था आपने, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी किसमें रिच है? हाँ ये 1 सर, में, कम्युनिटी 2 में, कम्युनिटी 2 में रिच है, रिच है। ठीक है। हाँ 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 ये सर, ये वो सर, हम ये डिस्कस करेंगे अभी। हम समझ गए थे आप कहाँ पहुंच गए। सर। फार्मूला रखने वाले बच्चों का यही हाल होता है। सर एक्चुअली दी ने काफी सारा पढ़ रखा है ना हाँ ऑलरेडी, तो वो मिक्सअप हो गया और हमने हाँ। जस्ट अभी यही सुना तो दिमाग से वही नहीं रहा। देखो जब गोल सर आपका अभी हायर हो, मैंने अभी क्लास अटेंड किया, मतलब when your goal is higher, then you must be guided by some experienced teacher. Otherwise, you are going to fall again and again. That is a kind of not a very easy questions, na? Very tough questions. So relative abundance, number of individual of a species upon total number of individual. So you can count the relative abundance. Right, relative abundance. If they are asking, otherwise you have to count the species and how many species are there. Based on that, you can just, for example, we have seen here there is a species 1, community 1 में देखो, community 1 में there is a daisy, 1 species. In community 2 there is also 1 species, dandelion, है ना, species 1 not 2, again 1, buttercup, 1 species, 1 species. Okay, getting my point, what I'm saying. So this is the species richness. Community 1 have 3 species and community 2 have 3 species. I think this is clear. सर Hmm. हेलो, यस सर। हाँ बोलो। हेलो Yes, yes. Please सर go उसमें ahead. तो जैसे सर अगर जो नंबर ऑफ स्पीसीज जो है ज्यादा है, तो जितना जितना ज्यादा होगा उतना ही तो ज्यादा बायोडाइवर्सिटी भी होगा। We are तो यानी coming कि in सर that point, कम्युनिटी ना? फर्स्ट या कम्युनिटी सेकंड की बात करें तो दोनों की, तो हाँ ये सर दोनों We के are केस coming में there. स्पीसीज भी हाँ, ज्यादा होगा और दोनों के केस में बायोडाइवर्सिटी। ओके ओके सर, we are coming to that point. Let us take one by ओके one. सर, Otherwise, there will be a lot of confusion. ओके सर। Now, flower species count from 2 communities. Again, the same data, right? Now you have to calculate species evenness of 2 communities individually, and a relative index. What we can say? If you are calculating the relative index, then this is called the species evenness. So daisy यस सर, number was 300 upon 1000, right? So you can calculate the species richness index or by applying this formula, relative abundance, right? Relative abundance, you have to take the individual number and then upon total number. See, if a teacher is guiding us, that is, you are more accurate, you are more focused, right? Otherwise, there is a lack of proper study material. Huh? There is no specific book I can say you should go and read thoroughly. Based on the question, we are researching over the content. That's the benefit of a teacher. So I'm working for that. So number of individual community 1, you can see 300 upon 1000. So it becomes 0.3. Similarly 0.34. Similarly 0.35.
36. And if you are summing up all that, then you are getting how much? This becomes 1. Okay, 1. Right? And in community 2, same 0.02, 0.05, 0.93. Again, it becomes 1. Clear? So this question can be asked. So what is the biodiversity? A community dominated by 1 or 2 species is considered to be less diverse. What does it mean? Less diverse. Dominated. If anyone is dominating, means more in number. Yes, sir. Then, if anything is dominated, then they have the less diverse. If anything is dominated, it means what? They are less diverse. Tough तो नहीं लग रहा लेक्चर आज का? Less नहीं सर, ठीक है। diverse. रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं? चेक कर लेना आप लोग वीडियो। ठीक है, दीपांशी से ज्वाइन कर लिए। ठीक है, less diverse, right? And again, if there are various species, different species, right? So they may have similar abundance. In terms of abundance, similar abundance, right? So species richness and evenness increases, so does diversity. If species richness means 0.3, 0.9, so which one is more diverse? 0.9, right? If species richness is increasing, right, you can calculate by formula 300 upon 1000 by their individual number upon total number. Then you can compare which value is more. So if the value is more, then they will be more diverse. Black green board की feeling आ रही है ना आज आपको? Yes, sir. Yes, This sir. is good, I think. Background is good to discuss and write. So this is the Simpson index again to calculate the both richness and evenness index together. So this is called as the सर ग्रीन कलर का ऑप्शन में होगा ना सर? हाँ, आज मैंने बैकग्राउंड भी लगाया, मेरे पीछे भी कुछ है। तो this is ये सर वही मैं देख रही थी क्या चेंज है। टॉपिक भी चेंज है ना, सिम्पसन इंडेक्स. सो दिस इज फॉर कैलकुलेटिंग बोथ richness as well as evenness, right? Both richness and evenness. So D is equal to N. लिख रहे हो? कॉपी में लिख लेते रहना, otherwise जब क्वेश्चन आएगा then you will forget. Yes, sir. So Yes, small n means total number of organism, total number of organism of particular species. ठीक है, particular species, and capital N is the total number of all species, total number of organism in all species. ये समझ में आ रही बातें क्या लिख रहा हूँ? वो अभी फॉर्मूले से वो कैलकुलेशन करा के बता देते हैं, ठीक है ना? वो कैलकुलेशन करा के बता देंगे. फॉर्मूला लिख लो, एन समेशन ऑफ एन माइनस 1, राइट? आज मैं यूट्यूब पे लाइव भी हूँ ना, तो मैं देख रहा था कि क्या प्रॉब्लम है. So Simpson index of diversity, this varies between the 0 to 1. ये याद रखो, 0 to 1, 0 to 1. What does it mean 0? 0 means infinite diversity. Infinite diversity. And 1 means no diversity. इसलिए जो डाइवर्सिटी का इंडिकेशन है
that should be in between 0 to 1. Correct? 0 होगा तो infinite हो जाएगा, that you cannot count or you cannot define, and 1 means no diversity. तो ऐसा होता नहीं है, तो it should varies between the between 0 to 1, right? So greater the D, then lower diversity. ये समझ में आई बात? D की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना lower diversity होगी. Means you have to calculate by that formula that is called the Simpson index. Which index? Simpson index, right? Index. Less value of D means higher diversity. Means it should be close to 0, है ना? Not 0. It should be close to 0 in points, है ना? Higher diversity. So let us see some examples. Now this is the 3 community given, है ना? Now you can see the community. Community 1 is this is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, and then community 1, community 2, community 3. Now here, how you are going to apply this formula? Let us see. अब मान लो ये है ना, तो आपने क्या फॉर्मूला वहां पे लिखा था? What was the formula of Simpson index? D. D is equal to total Means n Summation. small n n minus 1. It means minus 1 upon पहले तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. n, this is ni, and then this is a ni minus 1. ठीक है, तो 1 कर दिया तो 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया 11 से. ठीक है, राइट? तो अब मल्टीप्लिकेशन आसान हो गया, n इंटू n माइनस 1. तो अब नाउ यू कैन सी दिस इज 90, 72, 110, है ना? अब समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? 110, 90 ये सारा आ गया. तो ये भी है 9, 8, 72, तो टोटल आ गया 912, राइट? एंड हियर इज द n इज द 100. तो अभी आपका समेशन n माइनस 1 कितना वैल्यू हो गया? This becomes 912, right? And why I am taking the 99? Because that capital n minus 1. 100 है तो 100 multiplied n minus 1 99. 99. तो D की वैल्यू आ गई 0.09. देखो 0 के क्लोज में गई ना? Yes. तो that's why I am Yes, sir. High saying, diversity. हाँ, I am calculating this for community 1 only. केवल एक कम्युनिटी के लिए हमने कैलकुलेट किया है. Getting my point? I am calculating for only 1. So अब इसी तरह से आपको तीनों कम्युनिटी के लिए कैलकुलेट करना है. तो कर पाओगे? दे दूं आपको? Yes, sir. Yes, sir. चलो करो, मैं जूम भी कर देता हूं. Now you can see the data very clear. ठीक है? कम्युनिटी 1 के लिए आई हैव द D 0.09. ठीक है बेटा? पहले कम्युनिटी 1 का निकालें. कम्युनिटी 1 का तो निकाल लिया ना? Yes, sir. अब community 2 का निकाले ना? हाँ. Now we have to calculate for community 2, community 3. इंटरेस्टिंग सा है, कोई बोरियत नहीं होगी आपको. टाइम भले लगेगा, but you can handle it. तो 0.17. बाकी लोग भी कर लें. सर स्पीड तो हाई देखना है ना? डाइवर्सिटी. हाँ, स्पीड तो देखना पड़ेगा ना. स्पीड तो काउंट करता है भाई. हाँ सर. स्पीड मैटर्स ना. स्पीड तो टाइम आपको 2 मिनट मिलना है एग्जाम में. सर आंसर क्या? ये सर इसका आंसर कितना आ रहा है? 0.17 आ रहा है. लेट मी सी. सर कम्युनिटी सेकंड का नहीं दिया है. वो इसका मतलब होमवर्क के लिए हो गया. कैलकुलेट करके ले आना. ठीक है, कैलकुलेट करके ले आना. देन वी विल सी. अच्छा नहीं दिया.
सर जो तो चलो कम्युनिटी सर कम्युनिटी में जो वैल्यू दिया वो तो स्मॉल एन वही होगा ना, 72n है ना, हाँ उसी को हाँ स्मॉल एन लेंगे, उसके बाद फिर उसी को -1 तो उसका और एन इनटू कर देंगे, सबमिशन हो जाएगा। सर हाँ सर कम्युनिटी 2 के लिए 0.5 हुआ है। ठीक है। very तो good, मेरा 0.1 आ रहा है, 17 आ रहा है। सर ठीक है। कम्युनिटी 3 के लिए 0.22। कहाँ इतना डिफरेंस आ रहा है तुम लोगों का? आफरीन का अलग आ रहा है, तुम्हारा अलग आ रहा है। हाँ ये सर, हाँ डिफरेंस नहीं आना ये चाहिए। सर मेरा 0.17 आ रहा है। पॉइंट में ही आएगा, 0.17 सही लग रहा है मुझे। पॉइंट दीपांशी मैम फाइव तो आपका नहीं कितना आएगा। आ रहा है? चलो मेरा तो एक और 0.5 आ गया सेकंड 0.5 नंबर में। ज्यादा आ गया। 0.5 नहीं आना चाहिए, कम आना चाहिए। 4 5 6 7 8 लाइट कट गई बच्चों, देखा कैसे चलेगा काम। रात और में लाइट कभी नहीं काट देता है। हाँ बेटा बेटा, तो ये फाइलोजेनिक डाइवर्सिटी 35 कैसे हुआ? यही तो अभी आ रहा हूँ उस पे। तुम पहुंच गई। चलो स्पीसीज रीजनेस तो क्लियर है, यू हैव जस्ट काउंटेड। फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी हाँ में ये भी तो सर, काउंट कर सकते हैं ना, सारा काउंट करो। हाँ सर वो सर लेकिन हो नहीं रहा है। हम 3 अगर 4 जो 7, 3 एंसेस्टर को 10, लेके 1 चले 11, 12, 2 14, तो 3 17, 17 3 20, 22 से 28, अच्छा, ये जो 28 नंबरिंग दी 35। है सर इसी को करना है क्या? हाँ जी, अभी नंबरिंग दी रहेगी, आंसर पूछेगा। बच्चों को तो तो कुछ ये तो पता पहले है नहीं, हवा में रहते हैं। ये देखो नए नए अच्छा अच्छा, क्वेश्चन डिजाइन किया मैंने ना। अब मैं यहाँ पे सर मैं यहाँ पे हाँ ओके तो सर 1 मिनट, 6 7 6 बाईस 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 पॉलीजेनिक डायवर्सिटी इसे आराम से कैलकुलेट कर लो, कोई इशू नहीं है। ये तो 36 आ रहा है सर। 35 आ रहा है, तुम जोड़ने में तुम क्या कर रही हो? व्हाट यू डूइंग बाबू? सर 1 मिनट, यू आर डूइंग अंडा बंडा। 13 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 हाँ सर आ रहा है, ठीक है सर। ठीक है ना, ये सर ये सर ये सर मैंने कर लिया था काउंट। फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी यस सर 35 आ रहा है। आवाज आ रही है सबको? सर, यानी कि फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी में, यस सर, यानी कि सर फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी में हम उसके डिसेंडेंट को भी काउंट करेंगे प्लस उसके एंसेस्टर को भी काउंट करेंगे। हाँ राइट, ओके सर। सारा काउंट कर लेंगे। कुछ और भी है छोटे छोटे, ये इसमें तो खैर क्लियर कर दिया मैंने, फार्मूला क्लियर कर दिया फाइलोजेनेटिक। हाँ ये बताना था कितनी तरह की डाइवर्सिटी होती है ना, वो स्लाइड अभी रह गई है, कहाँ चली गई स्लाइड? आगे निकल गई। अच्छा लास्ट में, चलो ये तो हो गया ना, क्लियर हो गया। हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू अप्लाई द सिम्पसन इंडेक्स, है ना, डी इक्वल टू बायोडाइवर्सिटी। सर ये तो आपने कल कल के क्लास में ये वाला फॉर्मूला बताया था, NT इज इक्वल टू N0 ERT। किस चीज के लिए? कल तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया था, कल जल्दी जल्दी में वो बता रहे थे कि अच्छा अच्छा कल अच्छा, कवर करना है। यस मुझे सर। लगता है कुछ गड़बड़ हो गई, डिलीट हो गया क्या? अरे यार।
हाँ आ गया, टॉलरेंस वगैरह बताना है ना, ये बड़ा अच्छा स्लाइड है। हमें एक्चुअली में जो डाइवर्सिटी पढ़नी है, देयर आर 3 टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, we have to cover 3 type of diversity. Genetic diversity, variety of gene. We are talking about the gene within a species, right? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी तक कभी नहीं आया है, तो देखा ना, स्पीसीज डाइवर्सिटी कई बार पूछ चुके हैं इन द सैनन इंडेक्स एंड जो मैंने बताया था फॉर्मूला। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम विद इन गिवन रीजन, तो इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने देखा है। देन ये हमने ऑलरेडी कवर कर दिया कि व्हाट इज स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस। तो एक क्वेश्चन आता है कि विच कम्युनिटी हैज हायर स्पीसीज रिचनेस, है ना। फॉर एग्जांपल यू कैन सी कम्युनिटी 1, कम्युनिटी 2, स्पीसीज ये 25%, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। स्पीसीज 2 25, सी भी 25, डी भी 25, कम्युनिटी 2 में देखो 70, 10, 10, 10। Now tell me, which community has a higher richness? Sir, community 2. Community 2. Any reason? Yes, sir. The Sir, community क्योंकि स्पीसीज रिचनेस पूछ रहा है, उल्टा सीधा नहीं बताना, इवननेस बताने लोगों। अरे वो कम देखा तो इवननेस बता रही है, वो ये रिचनेस नहीं है, वो इवननेस है। देखो आंसर तुम लोग कैलकुलेट करो। कम्युनिटी सेकंड, वो फार्मूला लगाना भूल गए, वो करना पड़ेगा ना। 0.25 आएगा ना, कम्युनिटी 1 सारा 0.25 है, फिर कम्युनिटी 2 में 0.7, 10% का हो जाएगा कितना, 0.1 नहीं, टोटल में ना 70 90 परसेंट में दे दिया था, फिर वो कंफ्यूजन करके गलत नहीं करना है। विच कम्युनिटी इज मोर इवन, इवननेस मींस measure of whether a particular ecosystem is numerically dominated by one species or all represented by similar number of individuals। यहाँ पढ़ लो ना, नंबर ऑफ स्पीसीज गिवन एरिया। तो कम्युनिटी सेकंड में 70%, इट मींस कि जो ए वाला जो है वो अबंडेंस शो कर रहा है, हाँ, डोमिनेंसी शो कर, जहाँ पे डोमिनेंसी शो करेगा वहां पर डाइवर्सिटी लो होगा। हाँ, सर डाइवर्सिटी लो मोर इवन। एक चीज याद रखना, जहां पे ये परसेंटेज कम दिखेगा, ठीक है, वो ज्यादा रिच होगी, ठीक है ना, वो ज्यादा रिच होगी। और जहां पे इक्वल परसेंटेज दिखेगा वो ज्यादा इवन होगा। तो कम्युनिटी 1 इज मोर इवन, कम्युनिटी 2 इज मोर रिच, क्योंकि इसमें डोमिनेशन आ गई। अभी क्लियर हुआ? यस सर। सर कम्युनिटी जो सेकंड है वो मोर रिचनेस है। हाँ, क्योंकि 70% हो गया ना, डोमिनेस, एक डोमिनेट तो हो ही गया ना। यस सर। अभी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स नहीं कैलकुलेट स्टार्टिंग में करो। कम्युनिटी 2 ही बोला था। हाँ, बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स से बहुत कंफ्यूजन हो रही है तुमको, आप मैं बार बार कह रहा हूँ। सर अभी आपने बताया था कि नहीं सर, अभी आपने बताया था कि अगर जो कोई चीज अगर जो डोमिनेंसी तो कम हो जाएगा। तो वो हम पूछ ही नहीं रहे ना, जो तुम बता रही हो। अच्छा, तो बार बार वहां क्यों पहुंच जा रही हो? बल्कि दीदी का सुन के मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मैंने कम्युनिटी 2 बोला है। ये वही इसका फार्मूला ना, स्क्रू ढीला हो गया, आज बरसात हो रही। हाँ जी, ठीक है, चलो। So there are 3 type of evolution। कभी भी इसमें भी नहीं कंफ्यूज होना, बिकॉज वेरी माइनर डिफरेंसेस देयर, इवोल्यूशन, माइक्रो इवोल्यूशन एंड मैक्रो इवोल्यूशन। तो आपको ऐसा ट्री मिल जाएगा एंड देन आपको पूछ सकते हैं कि वेयर इज ए माइक्रो इवोल्यूशन, वेयर इज ए मैक्रो इवोल्यूशन, राइट। तो अभी देखो, इवोल्यूशन मीन्स चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन, चेंज इन, जैसे म्यूटेशन कहते हैं ना, म्यूटेशन, चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन।
वो चेंज होगी। अभी यहाँ भी क्या हो रहा है, इवोल्यूशन में चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन, दिस इज द टर्म। माइक्रो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन बिलो द स्पीसीज लेवल। माइक्रो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन विच गिव राइज टू न्यू स्पीसीज, है ना। तो अगर कोई नया स्पीसीज बनेगा, नई जनरा बनेगी, फैमिली बनेगी, क्लास बनेगा, फाइला बनेगा, देन दिस इज माइक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन ऐसा कोई नया नहीं बनेगा, मैक्रो वो गायब हो जाएगा, मतलब Below जो the- भी इफेक्ट है वो नलिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ डायग्राम से आप कोई बताओ नया कौन सा। स्पीसीज नहीं होगा उसी में ही हाँ हाँ, अभी देखो माइक्रो इवोल्यूशन का तुम देख सकते हो, एक ही स्पीसीज है लेकिन अलग अलग कलर है, अलग अलग, है ना, वो तुम्हें दिख रहा होगा। लेकिन माइक्रो इवोल्यूशन में अभी देखो सारा सीरीज से दिखा रहा है, तो दे कैन आस्क यू बाय गिविंग यू द क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन देके आपको पूछ सकते हैं कि बताओ माइक्रो इवोल्यूशन में क्या है। माइक्रो इवोल्यूशन में all the species are other. सर ये स्लाइड बहुत अच्छा है। हाँ, माइक्रो इवोल्यूशन में यू कैन सी ऑल द न्यू स्पीसीज आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, फाइलोजेनेटिक ट्री में बड़ा कंफ्यूजन होते थे। दिस इज कॉल्ड एज द क्लैडोग्राम। तो बाय द ब्रांचिंग पैटर्न वी कैन शो द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इसमें क्वेश्चन काफी आ रहे हैं आजकल, सीसीआर में काफी ज्यादा आ रहे हैं। तो इसमें अभी मुझे थोड़ा टाइम दो, मैंने उतने क्वेश्चन निकाल, आप लोग भी थोड़ा हेल्प कर सकते हो कि जैसे क्वेश्चन जो मिलते हैं यू कैन शेयर, है ना, ग्रुप में भी शेयर कर दो, तो वो भी हम कंपाइल कर लें स्लाइड में। तो वो फायदा ये रहेगा कि वेन एवर यू आर गोइंग टर्निंग द स्लाइड्स, है ना, तो वो आपको भी मिलता रहेगा। ठीक है, देखो क्वालिफाइंग सेशर इज नॉट ए टफ। डेली का डेली जो मैनेज अगर अच्छे से कर रहे हो, है ना, बाय रीडिंग, बाय रिवाइजिंग, बाय मैनेजिंग, है ना, द डेटा, बाय प्रैक्टिसिंग, तो ये डेली का जो ऐड होता है दैट इज कॉल्ड एज द सीएसआर क्वालिफिकेशन। डेली आपको उतना प्रैक्टिस कर, जैसे आज हमने फाइलोजेनेटिक पढ़ा है, तो जितना क्वेश्चन आया सब देख डालो लास्ट ईयर का, 10 इयर्स का, क्योंकि मैं भी टीचर हूं, मैं भी देख रहा हूं, आप भी देखो, कुछ नई चीज मिल जाएगी, देन वी कैन डिस्कस, राइट। दिस इज नॉट ओनली माई ड्यूटी कि मैं आपको बार बार, है ना, बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। हेलो, यस सर। इस बात को समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ, राइट। यस सर। तो आप देखो, हम और आप एक ही इंसान है, बट वी कैन मैनेज द वर्क। इफ यू आर मैनेजिंग द वर्क देन लोड इज वेरी लेस। अभी देखो सारे कहां से कनेक्टेड है, देखो अभी दिख रहा है क्लेडोग्राम में, एनालाइज द क्लेडोग्राम, व्हाट यू कैन कंक्लूड, देन आई विल टेल यू। अभी देखो ये आउट ग्रुप है ना, ज्यादा लंबी लाइन दिख रही है आपको। पहले भी मैंने बताया है कि जो ज्यादा लंबी लाइन होगी, मोर लेंथ लेस रिलेटेड। तो पहले तो लेंथ देखो, मोर लेंथ दे आर लेस, ऐसा पड़ाका बज रहा है? तो अच्छा वो मैंने यूपीएस लगवा लिया। यहाँ पे क्या है, लेस लेंथ, है ना। तो अभी देखो ये सारे के फीचर बता रहे हैं। दिस इज वर्टेब्रल कॉलम, है ना, ये दोनों कहाँ पे सिमिलर हो रहा है, लैम्प्रे एंड लैंसेट वर्टेब्रल कॉलम में। ये ट्यूना लैम्प्रे कहाँ से कॉमन हो रहा है, जॉज में। और सैलमेंडर तो फॉर वर्किंग लेग्स, एमनियोटिक एग में ये कॉमन हो सकते हैं। हेयर, लिपार्ड एंड टर्टल। अब यहाँ पे देखो कनेक्ट हो रहा है, राइट, दे आर कनेक्टिंग हियर। तो कुछ होगी चीजें कैरेक्टरिस्टिक वेयर दे आर कॉमन, चाहे स्पीसीज हो, है ना, चाहे फैमिली हो, कुछ ना कुछ कॉमन है यहाँ पे, जहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है। तो देर आर 3 पॉइंट्स यू कैन सी हियर, लॉन्ग लेंथ, ठीक है, लॉन्ग स्टिक कह लो या लॉन्ग लेंथ, एक तो शॉर्ट लेंथ और एक ज्वाइंट, ठीक है। So this is 3 points you can see, and whatever the cladogram is designed. सर
सब यस सर, यस सर, ओके ओके, यस सर, यस सर, वर्बल कॉलम, जॉज, amniotic hair, ओके, हेयर, टर्टल, लेपर्ड, मिस, लेवेंडर, amniotic हाँ हेयर जो है लिपर्ड में सिर्फ, amniotic एक टर्टल में 4 वॉकिंग लेग, हाँ सैलेमेंडर, टर्टल, लिपर्ड। सर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद रखने होंगे? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं यार, याद कुछ भी नहीं होता, जस्ट यू हैव टू सी कि जो है ट्यूना, हाँ, वर्टिकल आपको ये कॉलम, 3 पॉइंट्स लैम्प्रे। याद रखने हैं। और इसका एक सर फार्मूला होता है एक चीज ये बताइए, बायोइनफॉर्मेटिक्स में, बायोइनफॉर्मेटिक्स में इसका फार्मूला होता है टू कैलकुलेट द हाँ, लेंथ। ठीक है बच्चा? सर एक चीज ये बताइए, हेलो, हाँ 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 बोलो। कि जैसे सर अगर जो लैम्प्रे की बात करें तो वर्टिब्रल कॉला जो है वो लैम्प्रे में भी होगा, ट्यूना में भी होगा, स्लैवेंडर में भी होगा, टर्टल में भी होगा, ये चीज शो कर रहा है ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, जॉ जो है, अच्छा, और जो हेयर जो है वो ओनली लेपर्ड में, हाँ और लैंसेट आउट ग्रुप है, ओके ठीक है सर। ठीक है ना? क्लैडोग्राम, यस सर, क्लैडोग्राम को समझ लो। क्लैडोग्राम में अभी देखो जब ब्रांचिंग है, हाँ एक्चुअल पीएचडी इंस्पेक्शन करोगे, ऑफ जैसे इवोल्यूशनरी, हाँ अगर मान लो पीएचडी करते हो तो अगर कोई टीचर है जिसको बायोइनफॉर्मेटिक्स की, आजकल तो मैक्सिमम टीचर को होती है, जैसे सर मैं भी करेंगे कराता हूँ तो इंशाल्लाह। बायोइनफॉर्मेटिक्स, हाँ तो उसमें आपको कहेंगे कि जे कैलकुलेट करो, है ना, वही लेंथ है ना। देर आर वेरियस सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन दैट यू कैन कैलकुलेट। अगर कोई नई स्पीसीज आप इवॉल्व करते हो, जैसे बैक्टीरिया की कोई डिस्कवर कर लिया, तो वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो क्लैडोग्राम यू हैव टू मेक। क्लैडोग्राम से एक फायदा होता है, व्हाट इज द बेनिफिट, कि नाउ यू कैन मतलब आपको पता है नहीं, बिकॉज यू हैव डिस्कवर्ड समथिंग न्यू, आपको ये नहीं पता कि कहाँ रखें उसको, है ना। तो बेस्ड ऑन द फीचर्स, सिमिलरिटी इंडेक्स, है ना, उनकी सीक्वेंसिंग करते हो, सिमिलरिटी इंडेक्स कैलकुलेट करते हो। तो सिमिलरिटी इंडेक्स हमेशा याद रखना, ये भी बड़ा क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर शायद आया था। सिमिलरिटी इंडेक्स अगर पूछते हैं, सपोज यू हैव न्यू बैक्टीरिया या माइक्रोब्स, ठीक है ना, उसका सीक्वेंस मान लो ABCD है, ठीक है ना। और अब आपने क्या करना है कि बायोइनफॉर्मेटिक्स में वो रन करा देना है एल्गोरिथम, राइट, टू फाइंड द सिमिलरिटी इंडेक्स। सिमिलरिटी इंडेक्स अगर 10 के पावर -20 -30 -10 आ रही है, तो दे आर वेरी क्लोज, आर वेरी सिमिलर, है ना, ये ज्यादा सिमिलर है। माइनस में याद रखना 10 पावर -20 -30 -10, ठीक है, ये नोट कर लो, कोई नहीं बताएगा आपको, या बहुत 6-7 महीने पढ़ोगे तब आपको ये छोटी सी मिलेगी, ठीक है ना। तो कोरोना से भी बचना है, और दिमाग सर ये में फिर से बता दीजिए एक बार। बेटा ऐसा होता है, होमोलॉजी सर्चिंग होती है कि हमारा जो नया डिस्कवर्ड स्पीसीज है उससे मैचिंग कौन कौन से माइक्रोब हैं। तो माइक्रोब का आएगा नंबर हाँ 1 2 3 4 ढेर सारे आपको, जब NCBI में जाके ना ब्लास्ट करोगे, क्या करोगे, ब्लास्ट, तो बाय यूज ऑफ ब्लास्ट टेक्निक यस यू सर, कैन सी, ये मैंने किया सर। हाँ ब्लास्ट टेक्निक से आपको आएगी कौन सा इंडेक्स, सिमिलरिटी इंडेक्स, है ना। हाँ, सिमिलरिटी ये सर, ये इंडेक्स सर, ये सर, अगर 10 पावर -20 -30 -10 के रेंज में है, देन दे आर वेरी सिमिलर। 10 -30 वाला ज्यादा क्लोज है, मोर क्लोजर एज कंपेयर टू, तो यहाँ पे बना लो -30 10 पावर -30 is more similar than 10 power -20 then -10। ये बोर्ड का मैजिक हो गया आज, है ना, बोर्ड यूज करने का, ग्रीन ये ग्रीन सर। बैकग्राउंड। मजा भी आ रहा मुझे लिखने में, मुझे बहुत दिन से ये हो रहा था कि मैं बोर्ड वाली फीलिंग नहीं आ रही मुझे। सर वो आपने बहुत ये स्लाइड, ये बैकग्राउंड लेके स्लाइड को छोटा करके, एंड ये जो स्पेस जो है इतना, ये आप एज अ हाँ बोर्ड यूज कर रहे हो, हाँ सर ये भी बेस्ट है। हाँ, नहीं ऐसे ही करना है, ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, इधर 3-4 स्लाइड में थोड़ा मॉडिफाई नहीं कर पा रहा था,
अभी मैं इस पे कर रहा हूँ काम। तो आज चलो ये फाइनल हो गया। बैकग्राउंड पे इशू आ रहा था मुझे, क्योंकि व्हाइट होने पे बड़ा अजीब सा लगता था, पूरा दूसरा भी कलर मैच नहीं करता था, ब्लैक करने पे और भी अच्छा नहीं लगता था। तो जस्ट आज दिमाग में आया कि मेरे भी पीछे बिल्कुल व्हाइट दीवार दिखती थी, तो वो भी अच्छा नहीं लगता था। थोड़ा सा मेरा एक ड्रीम है, तुम्हें पता है व्हाट आई ड्रीम? जैसे वो न्यूज रूम होते हैं ना, आज तक के, एनडीटीवी के, उस तरह का मैं एक मतलब अपना रूम बनाऊं जो लाइव सेशन देगा। उसमें खर्चा आता है ऑफिस, हाँ 15 to 20 लाख आता है खर्चा, वो पूरा सेटअप में मैंने पता किया था। इसीलिए देखो पाथफाइंडर ने ना अपनी फीस नहीं जैसे वो अनअकैडमी ऑफिस है जैसे, हाँ पाथफाइंडर 30,000 ले रहा है अपनी लाइव क्लासेस में, कोई फीस कम नहीं किया, क्योंकि मे भी हो सकता है उन्होंने वैसा सेटअप बनाया हो। बहुत कॉस्टली होता है, कैमरे बड़े महंगे होते हैं, फिर एडिटिंग का एक अलग रूम होता है, साथ में लाइव होता है, साथ में एडिटिंग होता है। तो जैसे न्यूज रूम में नहीं चलता रहता है नीचे, वो सारी चीजें चलती रहती है, आप डिस्कशन करते हो, वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो है ना, कोई भी चीज आप ऐसे स्लाइड कर सकते हो, कोई चीज एक्सप्लेन कर सकते हो, तो दैट रिचनेस, डायनामिक इंटरेक्टिव रिचनेस। तो कभी आएगा, बच्चे बहुत सारे ज्वाइन करेंगे अगर आप लोग सफल होंगे तो। देन आई हैव ड्रीम। अब ये देखो क्या है, दिस इज क्रिएटिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। कैसे करेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट, कैसे करेंगे, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। चलो पहले तो डिफाइन करते हैं व्हाट इज अ जीन। जीन आपको पता है व्हाट इज अ जीन? जीनोटाइप, कंप्लीट सेट ऑफ जीन इन एन इंडिविजुअल इज अ जीनोटाइप। म्यूटेशन, रैंडम चेंज इन द जेनेटिक कोड म्यूटेशन। चलो ये सब आपको पता है। लेट अस सी द हाउ कैन वी कैन क्रिएट। कौन छोड़ गया? अच्छा, राजलक्ष्मी पाटिल, वेरी गुड। सो वो टाइम पास करती है, नॉट सीरियस हमेशा, शी इज मोर फोकसिंग ऑन द पीएचडी। चलो देखो, पेरेंट फर्स्ट जनरेशन एंड देन ऑफस्प्रिंग सेकंड जनरेशन, राइट। तो अब ये देखो सारे की साइज अलग है। यू कैन सी ऑल द क्रस्टेशियंस, यू कैन से लैम्प्रे, they are producing different kind of offspring, बट इसमें से देखो कि एक बहुत बड़ा होगा, है ना। larger offspring are more easily seen and eaten by fish, thus proportionally more small offspring survive to reproduce, that's why they have higher fitness। यहाँ पे फिटनेस इंडेक्स पूछेगा आपसे CCR में, ध्यान दिया आपने? आपने देखा क्वेश्चन इस तरह का? हेलो, बच्चे हमारे चुप हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। Yes, sir. ये देख रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? व्हाट आई एम सेइंग, आई एम जस्ट सेइंग। Yes, sir. दे कैन आस्क द फिटनेस इंडेक्स, ठीक है। फिटनेस इंडेक्स, व्हाट इज द फिटनेस इंडेक्स? तो फिटनेस इंडेक्स में देखो लैम्प्रे की रिक्वायरमेंट क्या था, मतलब ऑफस्प्रिंग जनरेशन इज नॉट ए टारगेट, द सर्वाइवल इज द टारगेट, ठीक है। दिस फिटनेस मीन्स हाउ दे आर सर्वाइविंग, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग द मोर सर्वाइवल। अब मान लो एक बड़े वाले को और एक छोटे वाले को करा दें, देन यू कैन सी द 3 स्पीसीज आर। यहाँ पे देखो 2 स्पीसीज कट गई क्योंकि उनकी साइज बहुत बड़ी थी, वो सर्वाइव नहीं कर पाए, ठीक। अब इसमें कितनी फिटनेस है? सबसे ज्यादा फिटनेस इन 2 की बची, तो ये काउंट भी पूछ सकते हैं कि विच हाउ मेनी हैव द हायर फिटनेस। तो यहाँ 2 हो गए, यहाँ पे कितने फिटनेस हो गए? 3 हो गए, देख रहे हो ना, 3। because if this natural selection continue for many generation, then what you can see, this is the 4th generation, all are surviving, so this is a kind of practice called as the creating genetic diversity, and this is a very good example of natural selection. This is very good example of natural selection, ठीक है। So now these are the terms: evolution by random processes, mutation, random change in DNA, already discussed, genetic drift, change in genetic composition,
over the time that leads to random factors, survival or reproduction. ठीक है. Bottleneck effect, reduction in genetic diversity of the population caused by reduction in size. ये कई बार पूछ चुका है. Very very important. This is very very important. Okay. Bottleneck effect. This is very important. A reduction in the genetic diversity of the population caused by reduction in size. Okay, जी. And what is the founder effect? बॉटल नेक क्यों कहते हैं? क्योंकि बॉटल का देखा है आपने नेक, शराब की बोतल ऐसे होती है ना. यस सर. तो ये यही कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे तो बहुत डाइवर्स हो सकती है ना पॉपुलेशन, बट कुछ क्वालिटी होंगी फॉर विच ओनली नैरो रेंज ऑफ स्पीसीज एग्जिस्ट, राइट. So this narrow range of species, you can define them as a bottleneck effect. यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हो रहा है? bottleneck effect. बॉटल मतलब बॉटल का नेक, ऐसे याद रखो. बॉटल का नेक मीन्स लिमिटेड. स्पेस कितनी है? लिमिटेड. साइज कितनी है? लिमिटेड. जगह कितनी है? लिमिटेड. तो एवरीथिंग इज लिमिटेड. सर स्मॉल पॉपुलेशन में ये देखने को मिलता है बॉटल नेक. हाँ, वेरी स्मॉल. ये बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया आपने. स्मॉल पॉपुलेशन. नाउ यू कैन सी दिस स्लाइड. स्लाइड हमारी अभी रिसर्च बेस आती है सारी ना. अभी तो यू कैन सी कि दिस इज काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट है ना. Always taking the challenge, doing the best, right? चलो. सो म्यूटेशन में आपने देख लिया जेनेटिक ड्रिफ्ट, सडन प्रेशर इज देयर, राइट. यू कैन सी सडन प्रेशर, पूरी एक स्पीसीज गायब हो गई, एक पॉपुलेशन है ना, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा. बॉटलनेक इफेक्ट थोड़ा सा छोटा हो गया. नाउ यू कैन सी बॉटलनेक इफेक्ट कहाँ है? स्मॉल पॉपुलेशन में होना चाहिए ना. तो ऊपर है कि नीचे है? टेल मी. ऊपर वाला डायग्राम में नीचे है, बिकॉज दिस इज हैपनिंग इन वेरी स्मॉल पॉपुलेशन. व्हाट इज द फाउंडर इफेक्ट? अभी देखो, बिकॉज ऑफ एनी जियोग्राफिकल आइसोलेशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये दो स्पीसीज पहले साथ में रहती थी, फिर एक जो है अलग हो गया, और उसने क्या बना लिया? अपना अलग बना लिया. दैट इज कॉल्ड द फाउंडर इफेक्ट. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द एलोपैट्रिक स्पेसिएशन? सो वो जो रेड वाला अलग हो गया था बीटल, एंड दैट इज कॉल्ड द एलोपैट्रिक स्पेसिएशन. क्यों? तो फाउंडर इफेक्ट है ना. यहाँ पे देखो अलग हो गया. तो दैट स्पीसीज क्रिएटेड, व्हेन न्यू स्पीसीज क्रिएटेड बाय जियोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. तो अब यहाँ पे देख सकते हैं डार्विन ने इसी को स्टडी किया था. डार्विन ऐसे नहीं नेचुरल सिलेक्शन का फार्मूला दे दिए थे एक दिन में, है ना. मैं समझ गए. यहाँ तो हमारे इंडिया के स्टूडेंट सोचते हैं कि एक दिन में डिस्कवरी हो जाए. सब एक दिन में करना चाहते हैं. एक दिन में सीएसआर निकल जाए, अगले दिन पीएचडी हो जाए, है ना, तीसरे दिन शादी हो जाए चौथे दिन ये हो जाए, वो हो जाए. तो ऐसे नहीं होता है. यू हैव टू मेक ए लॉन्ग टर्म प्लान. अभी देखो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है इन द, अभी डायग्राम अगर पूछेगा सीएसआर में, देन व्हाट यू कैन सी. बार्बियर फिंचेज इंसेक्ट ईटर्स, द फिंचेज इंसेक्ट ईटर्स, ग्राउंड फिंचेज. अब सब में एक ही बात हो रही है किसकी? फिंचेज की, है ना. ऑल आर इंसेक्ट ईटर. अब यहाँ पे ग्राउंड फिंचेज में देखो सीड ईटर्स एंड कैक्टस फ्लावर ईटर्स बोथ आते हैं, है ना. अब इसमें नीचे की देखो तो क्या हो रहा है? एक तरीके से क्लेडोग्राम बन गया. बट अभी पूछ सकते हैं कि एग्जैक्टली एलोपैट्रिक है या सिम्पैट्रिक है. तो दिस वाज द कॉमन एंसेस्टर. यहाँ से फिर डिवीजन हुआ, फिर दो बने,
फिर यहाँ से और डिवीजन हुआ है ना, ऐसे से बनते गए। तो रेड वाला कैक्टस सीड, येलो ग्रीन वाला इंसेक्ट एंड लाइट ग्रीन बर्ड्स। तो हाउ यू कैन से कि दिस इज एलोपेट्रिक? बोलो। बिकॉज जियोग्राफिकल वेरिएट था, इसलिए न्यू स्पीशीज बनता है। हाँ, एक तो ये भी पॉइंट है, दूसरा ये भी पॉइंट है कि इनका कॉमन इंसेस्टर है, और बिकॉज ऑफ वेरियस आइसोलेशन रिप्रोडक्टिव और जियोग्राफिकल, तो उनकी हैबिट चेंज होती गई, बीट उसमें ईटिंग हैबिट चेंज हुई है। पहले इंसेक्ट था, फिर थोड़ा सा डाइवर्स हो गया है ना, लार्ज ट्री, वुडपेकर है ना, उनका अलग तरह का हो गया, देखो है ना, जो उनकी क्या बोलते हैं इसको, बीक्स बोलते हो ना, बीक्स के वेरिएशन आ गए, कोई लंबा हो गया, वुडपेकर तो आप जानते हो कितना लंबा होता है, लार्ज ट्री फिंचेज। अब वो ट्री के अंदर रहने वाले इंसेक्ट को निकालना है, दे आर मॉडिफाइंग देयर फिंचेज है ना, मीडियम ट्री, स्मॉल ट्री है ना, मैनग्रोव थोड़ा सा शार्प हो गया। अभी क्या हो गया, अभी और देखो, अब इनकी हैबिट भी चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कह लो, है ना। तो दैट्स व्हाई दिस वाज कॉल्ड एज द एलोपेट्रिक स्पीसीज ऑफ डार्विन फिंचेज। सीसर कुछ नया नहीं करता, यही सब डिस्कवरी करता है कि आपको एक डायग्राम रख देगा, दे कैन आस्क यू कि टेल मी व्हाट इज द एलोपेट्रिक एंड व्हाट इज द स्पीसीज सिंपैथेटिक। ओरिजिनल फील्ड माउस पॉपुलेशन, देन से देखो अब एक बीच में रिवर आ गई, पहले तो एक ही जमीन पे रहते थे साथ में, अभी क्या आ गया, रिवर आ गया। रिवर आ गया तो क्या हुआ, पॉपुलेशन स्प्लिटेड। देन अगेन क्या हुआ, फॉर मेनी जनरेशन ईच पॉपुलेशन इवॉल्व इंडिपेंडेंटली, ठीक है, over many generation each population evolve independently, eventually two population become genetically distinct। अब यहाँ देखो चूहा सफेद काले एक साथ रहते थे, देख रहे हो, फिर ये नदी आ गई, नदी आ गई तो कहानी जैसा लग रहा है ना, स्टोरी की तरह नदी आ गई, नदी आ गई तो फिर क्या हुआ, ओवर मेनी जनरेशन each population evolve independently and eventually the two population become genetically distinct हो गए। अब एक नई स्पीसीज आ गई, इन द रिवर ड्राई अप, अब मान लो रिवर खत्म भी हो जाए तो अब दोनों एक नई स्पीसीज के रूप में आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज द एलोपेट्रिक स्पीसीज। तो व्हाट यू कैन कंक्लूड, एलोपेट्रिक मीन्स origin of new species, origin of new species, ठीक है। तो because of barriers, any barriers are there, geographical हेलो isolation, हाँ बोलो। So new species arises। सर स्लाइड का सर 10 out of 10। अरे वाह, सर स्लाइड का 10 out of 10। दीपांची, वाह, आज दीपांची ने पहली बार 10 दिया है दीपांची ने दिया ही नहीं, ओके। मैं डेली देती हूँ मैं। हाँ, तुम 9 देती हो, चलो, मतलब मैं वो कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट इट शुड बी रियल, है ना, जो आपके दिल से फीलिंग आती है, बिकॉज वन डे आप भी टीचर बनोगे तो जो मेरी हैबिट है भाई आपके अंदर जाएगी, है ना, मानते हो कि नहीं इस बात को? बिकॉज स्टूडेंट्स का नेचुरल हैबिट होता है, ब्रेन का नेचुरल हैबिट होता है कि हम जो बेस्ट होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो वी शुड। अभी देखो सिंपैट्रिक क्या हुआ, सपोज देयर इज 3 वैरायटी ऑफ व्हीट, इन कॉर्न व्हीट, ड्यूरम व्हीट, कॉमन व्हीट, तीनों में व्हाई वी आर सेइंग कि दिस इज ए सिंपैट्रिक। अभी स्पीसीज इवॉल्व हो रही है विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी बैरियर, नो बैरियर। आप क्या लिखोगे, अगर स्पीसीज इवॉल्व हो रही है, नो बैरियर एंड इवन देन न्यू स्पीसीज इवॉल्व। आज मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि बैकग्राउंड इट्स जबरदस्त ग्रीन कलर का है ना, तो मुझे बोर्ड वाली पूरी फीलिंग आ रही है। सर ये आईज को भी अट्रैक्ट करता है इसीलिए। हाँ, आईज ग्रीन कलर ना हमेशा बहुत अच्छा रहता है, आपको दुखता भी नहीं है।
हाँ पेनफुल नहीं होगा। ये सब सजेशन देना चाहिए बॉडी, मतलब मुझे तो लग रहा था तो आई वाज चेंजिंग, बट आपको भी एक बैकग्राउंड में सजेशन आते रहना चाहिए। हम लोग प्राइम मिनिस्टर तक को सजेशन भेजते हैं कि आप ये करिए, आप वो करिए। अभी लाइफ साइंस का वो फेलोशिप बढ़ाने के लिए भेजा है, तो आप लोग भी भेजो, है ना। जहां भी आइडिया आए नोट इट डाउन एंड सेंड इट। बाकी उसका नेट काम है वालों एक्शन को भी लेना। फेलोशिप देना चाहिए। अरे तो भेजो ना, प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर हैंडल पे भेजो, ओपनली वो दिखेगा, उसके प्रेशर में वो करेगा। लेकिन 1000 बच्चे करें तब तो, है कि नहीं। पैसा तो उसके पास खजाना ही पड़ा हुआ, उसके भाई एक फोकस होता है कि आज आपने ये बात कही, चलो अच्छा वो सोचेगा, फिर अपने जो साइंटिस्ट हैं उनसे मांगेगा, तो वो बताएंगे कि 70 सालों में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, वही चल रहा है सारा। तो वो, तो भाई मैन ऑफ इवोल्यूशन है मोदी को, मैं रिवोल्यूशनरी मानता हूँ, बिकॉज ही इज द ओनली वन पर्सन दैट चेंज द इंडिया फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक कैरेक्टर। अदरवाइज कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कर रखा था, सब कुछ बदहाल था, नाली सड़ रही थी, इवन नाली और रोड तक सड़ रहे थे। तो उतना रिवोल्यूशनरी इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए, और केजरीवाल जैसा तो बौद्ध धर्म वाला पैदा हो गया तो बेड़ा गर्क ही है। दिल्ली वाले कितने मर गए देखो फ्री बस के चक्कर में। तो ऑल दैट इज द पेस ऑफ इवोल्यूशन। अब ये प्लेस ऑफ इवोल्यूशन में ग्राफ आपसे पूछ सकता है ना, देखो ये ग्राफ ऊपर से नीचे आ रही है, ये इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है। व्हाट डज इट मीन? ये है एडॉप्टेशन के लिए, कि अगर एडॉप्टेशन मतलब लेसर टू ग्रेटर एडॉप्टेशन, राइट, स्लो टू फास्ट, है ना। कहीं पे देखो यहाँ पे दिखाया है रेट ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज, सेकेंड में क्या है जेनेटिक वेरिएशन, थर्ड में पॉपुलेशन साइज, फोर्थ में जनरेशन टाइम, ठीक है। तो ऑल देयर मे बी द डिफरेंट रीजन ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है ना। All may be the different evolution. Genetic variation. Slowly changing environment gives species more time to adopt. Less genetic variation, है ना। ये इस ग्राफ से क्या देख रहे हो? You should learn how to conclude by watching the graphs. लाइन ऊपर से नीचे आ रही थी तो वो लेसर वाले को ज्यादा प्रेफर कर रही थी, यानी स्लो चेंज, स्लो टू फास्ट हो गया ना, तो स्लो चेंज हुआ। यहाँ पे स्लो चेंज हुआ तो एडॉप्ट का ज्यादा टाइम मिल गया, ग्रेट एडॉप्टेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, लेस जेनेटिक वेरिएशन मीन देयर इज लेस चांस टू स्पीसीज टू अडॉप्ट टू चेंजिंग कंडीशन, यानी मोर जेनेटिक वेरिएशन मोर एडॉप्टेशन। तो यहाँ पे मोर की तरफ लाइन चली गई ऊपर, अब फिर ऊपर से नीचे आ रही, दिस इज स्मॉल लार्ज लेसर बेटर, एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन। इफ ए बेनिफिशियल म्यूटेशन occurs, it can spread more rapidly in a small population than in a large population. So generation time, shorter generation time increases chance that beneficial mutation will occur given amount of time and allow them to spread from population. So I think this was the last slide. GMO को मानोगे कि स्पीसीज नई है कि नहीं? बस एक क्वेश्चन. If I'm creating GMO, then can you consider it as a new species or not? And will they inherit generation? अगर सर नेक्स्ट जनरेशन आता है तो न्यू स्पीशीज कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जीन तो चेंज हो ही रहा है ना. जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब वी आर इंसर्टिंग द जीन फ्रॉम अदर स्पीसीज, बट द स्टेबिलिटी अगर वो कई जनरेशन तक स्टेबल है. हाँ, इंट्रोड्यूस तो कर ही रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज जीएमओ. बट प्रॉब्लम क्या है कि उनकी स्टेबिलिटी, हाउ दे आर सस्टेनिंग इन द एनवायरनमेंट. इफ दे आर sustaining in the environment more than 4 generation, then this will be the new. सर डायग्राम फिर से दिखाइए, तो ग्राफ वाला फिर से दिखाइए. ये माइंड में पिक्चर खींच लो इस ग्राफ की, ऐसे ग्राफ आएंगे तो व्हाट यू विल कम. ठीक है जी, चलें आगे. yes, चलो एंड करते हैं ना, खत्म. तो ये दिखा देते हैं, दिस इज द साइंस ऑफ जीएमओ. A lot of things are evolving. प्लीज वो पिछला वाला ग्राफ मुझे समझा दीजिए, वो ए वाला. अरे ये देखो ना, यहाँ पे लाइन क्या है, ऊपर है ना. हाँ. ऊपर है, तो ये क्या कह रहा है, पढ़ो, एनवायरमेंटल चेंजेस.
रेट ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज है। यहाँ पे नीचे होगा तो स्लो, ऊपर होगा तो फास्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एडॉप्टेशन लेस है, यानी इन्वायरमेंटल अगर बहुत तेजी से चेंज होगा एडॉप्टेशन लेस होगा, लेकिन अगर इन्वायरमेंटल स्लो चेंज होगा तो एडॉप्टेशन ग्रेटर, ठीक। पापा कहाँ है इनके? अभी उन्हीं को दे दीजिए। क्लियर? हाँ खा रहे हैं। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया आपको? सर एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज, और लाइन आ रही है ऊपर से नीचे, ग्रेटर की तरफ लाइन टच कर रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन्वायरमेंट ओके ओके ओके। स्लो चेंज होगा तो एडॉप्टेशन के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। यहाँ साइड में लिखा हुआ है उसकी मीनिंग, अगर मैं स्लाइड शेयर करूंगा तो यू कैन रीड दैट वन, है ना, समझ रहे हो? ओके सर। यहाँ पे देखो जेनेटिक वेरिएशन है, तो जेनेटिक हाँ वेरिएशन ठीक है फास्ट सर। होगी, लेस वेरिएशन होगा तो हाँ तो तो फास्ट स्पीशीज नए स्पीशीज बनने का ज्यादा चांसेस रहेगा। हाँ, बस एक ही बात हो रही है, नए स्पीसीज बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो ये सब इवोल्यूशन। ओके सर। तो ये टॉलरेंस कल भी हमने डिस्कस किया था, है ना, कि व्हाट इज द फंडामेंटल नीड्स। कौन चला गया? अच्छा अभी तो बचा हुआ है। नाउ यू कैन सी द टेम्परेचर एंड परफॉर्मेंस, है ना। सर्वाइवल हियर, लो सर्वाइव एंड ग्रो, बट दिस इज द रेड जोन, दिस इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल। फंडामेंटल नीच में डेफिनेशन है, सब जगह नीच नहीं बनेगा। नीच कहाँ बनेगा? जो ऑप्टिमम होगा, वेयर देयर इज ए हाई चांस ऑफ सर्वाइवल, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड। कल मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था फंडामेंटल नीच। नीच आर 3 टाइप, रियलाइज्ड नीच, नीच जनरलाइज्ड, नीच स्पेशलाइज्ड। ओके, रियलाइज्ड नीच रेंज ऑफ बायोटिक एंड बायोटिक कंडीशन, कल हम पॉपुलेशन वाला डिस्कस करेंगे, आज तो ये खत्म कर दें। Under which species lives, है ना, तो this determine the species distribution or area of what where it lives. Niche generalist species that live under wide range of condition, specialist that live under specific condition, ठीक है। फंडामेंटल वर्सेस रियलाइज्ड नीच। यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो हाई टाइड आया हुआ है ओशियन में, लो टाइड है ना। तो ये जो है ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज द कैथमेरस, है ना। तो spread of Cathmelus when balance was removed indicate the competition exclusion make the realized niche of Cathmelus much smaller than its fundamental niche. तो फंडामेंटल niche में देखोगे तो वहां से थोड़ा मूव हो रहा है। when Cornell removed Balanus from the lower strata, the Cathmelus population spread into that area. तो हाई टाइड वाले जोन में भी आपको इनका रिचनेस मिल रहा है, स्पीसीज रिचनेस। तो अगर 2 स्पीसीज होती है देन दिस इज ए प्रॉब्लम, देन यू कैन नॉट फाइंड इट। इसको कहते हैं नीच, है ना। कहाँ पे नीच बनाएंगे? इवन इन द एब्सेंट ऑफ कंपटीशन दे विल रियलाइज द फंडामेंटल नीच, ठीक है ना। तो ये है पूरा फॉसिल्स, आपको बारे में पता ही है फॉसिल रिकॉर्ड। एंड दिस इज द एंड ऑफ टुडेज स्लाइड। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask, ठीक है। थैंक यू। Good night, sir. गुड नाइट।